میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ آج 16 نومبر 2024 کو سیٹرڈے 4:15 بج رہے ہیں دن میں یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. دلی میں ہوں, سفر میں ہوں. جواب میں ویڈیو کے ذریعے سے دے سکتا تھا اگر اپنے حیدرآباد میں ہوتا. حیدرآباد میں جو میری ٹیم ہوتی تو ان کی موجودگی میں ویڈیو کے ذریعے سے جواب دیتا, لیکن سفر میں ہوں اس لیے آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اور آڈیو کو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا جائے گا. جیسے کہ 10 نومبر اور 14 نومبر 2024 کے 2 جواب میرے اپلوڈڈ ہے میرے یوٹیوب چینل پہ. میں اس میں جواب دے رہا ہوں یسٹرڈے 15 نومبر 2024 کا 6 منٹ 7 سیکنڈ کا جو آڈیو آیا ہے بشکل ویڈیو بریلوی ساتھی کے یوٹیوب چینل پہ, اور اس میں 6 منٹ 7 سیکنڈ میں سٹارٹنگ میں جو میری باتیں سنائی گئی اور پھر میری ان باتوں کو سن کر جو سمجھے اس مدرسے کے ذمہ دار انہوں نے جو جواب دیے شاید آپ کے پاس پہنچا ہوگا. وہ شاہین نگر حیدرآباد کے بریلوی مدرسے کے ذمہ دار نے خطبہ جمعہ میں جو ان کے سامعین کو بولے کہ فصیح الدین حیدرآبادی نے ایسا ایسا کہا ہے, تو جواب میں انہوں نے کہا کہ آئیے ڈیبیٹ کے لیے مدرسے کے دروازے کھلے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو کلیریفائی کر دی ہیں وہ. میں نے 14 نومبر 2024 کے میرے آڈیو میں جو بولا تھا, میرا گمان جو تھا کلیم رضوی کے آڈیو سن کر جو صاف ہو رہا تھا کہ وہ ڈیبیٹ سے بھاگ چکے ہیں, تو میرا گمان یہ تھا کہ ہو سکتا ہے مدرسے والے ان کو بول دیے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں یہ ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے, اب آپ نہیں کرنے دیں گے, ایسا بولے ہوں گے مدرسے والے کلیم رضوی کو. یہ میری سوچ تھی, لیکن مدرسے والے کلیریفیکیشن دے دیے ہیں کہ اس مدرسے میں ڈیبیٹ کریں گے وہ. میں یہ سمجھا تھا کہ کلیم رضوی کے جھوٹ ایک نہیں کئی واضح ہو چکے ہیں. اگر ڈیبیٹ ہوتا بھی ہے ان کے مدرسے میں, اور اگر ڈیبیٹ میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے کلیم رضوی کو, اہل حدیث کی جو حق والی تعلیمات ہے عقیدے کے چیپٹر میں ہو یا دوسرے اور بھی ابواب میں, ہم کو تو پہلے عقیدے پر ہی ڈیبیٹ کرنا ہے, تو وہ واضح ہو جائے گا اہل حدیث کا حق, اور جو باطل پر ہے کلیم رضوی وہاں پر ان کو جو ہے ذلت جھیلنی پڑے گی, تو اس سے مدرسہ بدنام ہو سکتا ہے. ایسا میں نے سوچا کہ یہ سوچے ہوں گے مدرسے والے, اس لیے منع کر دی ہوں گے. میں نے ایسا سمجھ کے بولا تھا, اور میری ان باتوں کو غور سے سنے ہیں, سمجھے ہیں وہ لوگ, اور کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ جی نہیں مدرسے میں ڈیبیٹ ہوگا, آئیے دروازے کھلے ہیں مدرسے کے. تو الحمدللہ بریلوی مدرسہ شاہین نگر حیدرآباد کا, جس میں صوفی کلیم حنفی رضوی ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے, وہ مدرسے میں آ رہا ہوں میرے 9 ساتھیوں کے ساتھ, کتابیں اور کیمرہ سٹینڈ وغیرہ سب کے ساتھ انشاءاللہ. 10 لوگ آئیں گے, پیسفل انوائرمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا 25 نومبر کو انشاءاللہ. اگر صوفی کلیم رضوی 25 نومبر کو نہیں آ سک رہے تو 26 کو آ جائیے, کیونکہ آپ نے ڈیٹس دیے تھے نا 15 نومبر یا 25 نومبر کے بعد. اب جب اس نے یہ کہا کہ آپ آئیے 25-26 تاریخ کو آپ اس کے چینل پہ جا کر پوری ویڈیو سن سکتے ہیں, اس جگہ پر شاہین نگر میں, اور آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا 10-10 لوگوں کے بیچ میں, ہمارے 10 آپ کے 10 ہوں گے. میں نے فوراً ٹکٹ بنا لی, اور اس کے بعد میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے چینل میں چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب تم نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ آپ شاہین نگر آئیے, آپ نے یہ 16 نومبر کو آڈیو ڈالی اس مہینے کی, اور 17-18 کو میں نے 17 کو ٹکٹ بنائی اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں. تو میں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا, چونکہ یہ ساری کارروائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو عوام کے آنے کا ڈر ہے, لیکن میں کسی بھی شخص کو مناظرہ گاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے مسلک کا کوئی شخص بھی مرکز اہل سنت کے قریب آئے. مزید یہ کہ شہزادہ حضور شہباز دکن علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک اسپیشل آڈیو اس سلسلے میں جاری کیا, اور اسے نظر سامعین کیا گیا, لوگوں تک گوشے سامعین تک بھیجا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی سنی نہ آئے. آپ دیکھیں کہ مرکز کے آس پاس نہ اس وقت گاڑیاں ہیں, نہ لوگ ہیں, نہ چہل پہل ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई। इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीस व कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमात को जिसका तसल्सल रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना और मेरा ये कहना कि आप आइए, आपका बाल भी बेका नहीं होगा, आपको खरोच तक नहीं आएंगी, कोई आपको टेढ़ी निगाह से देखेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि इस मुनाजरे की शोहरत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की मारिफत पहुंच चुकी थी। हमारा इतना कह देना काफी था, लेकिन इसके दिल में जो मुवक्किल होने की बात करता है, अल्लाह से डरने की बात करता है, लोगों का खौफ कितना है कि बार बार पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो हमारे सदर साहब ने वो कोशिश भी की, चुनांचे उन्होंने अपने मरकज के लेटर हेड पर पुलिस वालों से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम यहां पुरअमन अंदाज में मुनाजरा कर सकें और फरीक़े मुखालिफ को जवाब दे सकें, उसके दावे को तोड़ सकें। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो। आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं, क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक हक साबित करना था, हमारा शिर्को कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। यह आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया, उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहां पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहां करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, आप एक काम करें कि आप आ जाएं, बात हो जाएगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा है कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है? चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है और आयन वक्त पर तुम नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना। यहां तक लिखा मैंने, लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना है। वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग
10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था। उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तेबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकाईद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है, आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तेबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की 4 शाखें हैं और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हंबली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़े में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब, जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल अफआल रसूमात और फौजशुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है, अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो यह था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा उसका हाल ऐसा है कि एक कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया,
अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने? यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल लाअहिल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है, बेटे जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुकल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हां, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे, लेकिन जाकर अगर हार गया तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तो फिर कोई जाए पना नहीं है। तो बहरहाल इसने बहुत दूर की सोचा और बहुत जीरक बंदा है ये, बहुत दूर की सोचता है, बहुत सोच समझ कर ये मुनाजरे में नहीं आया कि अगर मैं आ गया तो जिल्लत और लानत का तौक मेरे गले में पड़ेगा और मरते ताजीस्त की रुसवाई रहेगी कि फिर मुझे मुंह उठाने के मैं लायक नहीं रहूंगा। बहरहाल फसीहुद्दीन तुमने बुलाया, मैं आया, तुम नहीं आए, यही तुम्हारी हार है। इसके बाद तुम ऑडियो बाजी करो, वीडियो बाजी करो, किसी मकतब में जाकर कुतुब खाने में किताबों पे निशान लगा दिए गए। क्या हैदराबाद में किताबें बेचने की दुकानें नहीं है? कुतुब खाने में चले गए, किताबें दिखा दी और दो चार वो फार्मी मुर्गी को दिखा दिया और लाल रुमाल पहने हुए, देखो ये है हमारे उलमा। तो जो उलमा वहां बैठे हैं, अगर कुरान और सुन्नत का दर्द होता, दीन का हब्बा बराबर दर्द होता तो आज सामने आकर मुनाजरा करते। सामईन मोहतरम, इनका पुलिस परमिशन बार बार मांगना और बार बार पुलिस वालों को दूसरे जराए से परमिशन न देने के लिए उकसाना, ये दोनों इनकी चालें हैं। जी हां, अब इनको मालूम है परमिशन मिलेगा नहीं, फिर इसी को बहाना करके मैं कहूंगा भाई जब परमिशन मिला नहीं तो मैं जाऊं क्यों। तो इससे पूछिए क्या मुनाजरा करने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी है? जो तूने 4 अदिल्ला बताए हैं उनमें से कोई एक से साबित होता है कि पुलिस परमिशन लिया जाए? वैसे तो ये इतने बड़े मरदूद है, दावा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हदीस और कुरान पे अमल करने का, लेकिन जब इन्हें अपनी मौत नजर आती है फिर इजमा की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है और कयास की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है। जी हां, और फिर खुद ये मुज्तहिद मुतलक भी बन जाते हैं। ये नफ्स परस्त लोग हैं, खबीस नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करते, ये अपने खबीस नफ्स की पैरवी करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहां वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, वो नहीं आया, इसी में उसकी हार है, उसकी शिकस्त है। और मैं फिर हिंदुस्तान भर, बर्रे सगीर और दुनिया भर के गैर मुकल्लिदीन को इस तरह का चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा तो कोई दीन धर्म है नहीं, कोई ईमान है नहीं। तुम हमें बुलाओ, हम खर्च करके पहुंचे, फिर तुम गायब हो जाओ शियों के बारे में इमाम की तरह। तो बेहतर यह है कि आप जिसे भी मुनाजरा करना हो, मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में पहले इत्तला करे कि मैं इस टॉपिक पर मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूं। आ सकता है, उसका इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम उलूम व फनून की जरूरी किताबें हैं, वही मुनाजरा होगा। अब किसी की दावत पर मैं उठे छूटे पहुंचने वाला हूं नहीं। आपने देखा लोग बुलाते हैं, खुद गायब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए।